Welcome to the Learning Hub. I am Rizwan and I'm here to make your board exam preparation easier and more effective. As Albert Einstein once said, education is not the learning of facts, but the training of mind to think. Today we are here to sharpen our thinking skills and master board exam questions. So in this session, we will focus on 4 or 5 marks questions from the 10th board exam. These sessions are crucial as they test your understanding and problem solving ability. I will break down each concept step by step, ensuring you grasp the logic behind the solution. So grab your notebook and stay with me till the end. If you find this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share with your friends. So before starting, let's start with a quote. Every morning, you have 2 choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. हर सुबह आपके पास 2 विकल्प होते हैं. अपने सपनों के साथ सोते रहिए या उठिए और उनका पीछा कीजिए. So let's start with a question. The volume of a cylinder is 5 times the volume of a cone. The base radius and slant height of a cone are 7 centimeter and 25 centimeter respectively. If the radius of the circular base of the cylinder is 14 centimeter, then find the volume and curved surface area of the cylinder. So let's focus on the first line of this question. The volume of a cylinder is 5 times the volume of a cone. So here we have one cylinder. आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है. Its volume is 5 times the volume of a cone. Means the volume of a cylinder is equal to 5 times the volume of a cone. कोन की वॉल्यूम निकालने के बाद अगर आप उसको 5 से इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं, तो आपको सिलेंडर की वॉल्यूम मिल जाएगी. ये इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकालना पड़ेगा पहले. अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकालने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो है द बेस रेडियस, ठीक है, एंड स्लैंट हाइट. हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या होता है. तो बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और बेस रेडियस मतलब नीचे का रेडियस, ठीक है, तल का रेडियस. और slant height of a cone is 25 centimeter. We'll see how to solve. और उसके बाद दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर. देन फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो फर्स्ट याद रखिए हमारा एम है कि हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज वी. So then what will be the value of volume of a cylinder? It will become 5V. Okay. तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन को 5 से इंटू कर देंगे, ठीक है. ओके लेट्स. सो यहाँ पर गिवन चीज है, चलो देख लेते हैं. Let's write the given things first and what are the things to find. So we have radius of the cone, which is I have taken small r, okay, equal to 7 centimeter. Then the slant height of the cone is L, 25 centimeter. And we have to find out volume of cone. The formula is, as you can see in the screen, 1 by 3 pi r square h. Okay. Now, here we have small r, that is radius of cone, 7 centimeter, it is given. Okay. Now, slant height is given. But in the formula we have h. So it's different. Slant height is different and the height of the cone is also different. तो हमको h निकालना पड़ेगा.
देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक कोन है, और ये है आपका बेस रेडियस जो कि 7 सेंटीमीटर है, और ये है स्लैंट हाइट एक्चुअल में, साइड वाला स्लोप जो बनाता है स्लैंट, ओके, ये है 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसकी हाइट। हाइट एक्चुअली ये होती है, ओके, जो कि एच है। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें व्हाट हाइट हमको अननोन है। We have radius and we have a slant height. So we can use here Pythagoras theorem. What Pythagoras states, he, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of two sides making a right angle. वो दो साइड जो राइट एंगल बनाते हैं, अब यहाँ पर दो साइड देखिए, एक एच है और एक आर है, वो ही राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के बराबर होगा। हाइपोटेनस होता है 25। ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। या फिर आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड, दैट इज हाइपोटेनस, ओके। इसको सो वी कैन से दैट sum of the square of two sides making right angle is equal to square of the hypotenuse। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, एच स्क्वायर एक राइट एंगल बनाने, एच एक साइड है जो राइट एंगल बना रहा है, आर एक साइड है जो राइट एंगल बना रहा है, ओके। और उनके स्क्वायर का सम अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के बराबर, ठीक। नाउ हमको निकालना है एच, तो हम आर को उधर भेज देंगे, आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एल की जगह एल की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू। एल की जगह 25 और आर की जगह 7। लेट्स पुट द वैल्यू, ओके। एल की जगह मैंने लिख दिया 25 और आर की जगह 7। नाउ व्हाट इज 25 स्क्वायर? 25 स्क्वायर इज 625, ओके। और 7 स्क्वायर तो हम मालूम 49। इनको माइनस करेंगे तो हमको आ जाएगा 576। नाउ ये स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड जाता है इक्वल टू के, तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट। Okay, now we have different methods to find out square root. Here we will focus on prime factorization method. Okay, how to solve the square root of 576. There are many other ways also. Division method is there. You can use heat and trial method also. But for the sake of convenience, or you can say for the 10th standard, basically, we'll focus on square root of 576. So I will do prime factorization. कैसे करेंगे? अभी क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बहुत आसान है हमको, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, दैट इज एन इवन नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और 2 से डिवाइड करना बेसिकली बहुत आसान होता है। आपको बस 576 का आधा देखना है, तो ज़्यादा कोई बड़ा डील नहीं है। 576 का आधा 288 होता है, ओके। और एल्स यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो। 2 2s are 4, 1 remain, 2 8 is 16, फिर अगेन 1 remain, 2 8 is 16। इट्स अप टू यू व्हाट यू कैन डू। और 288 का आधा 144 ऑल्सो यू कैन राइट इजीली। 144 का आधा, और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। देन 76 को 2 से डिवाइड करेंगे या 72 का आधा लिखेंगे, और फिर से 36 का भी आधा लिखेंगे, फिर 18 का 2 9 से 18। अब प्रॉब्लम यह है, 9 क्या है हमारे पास? एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। जब ऑड नंबर जिनके लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स आते हैं, जो कि 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते, ओके। तो ऐसे केस में हम देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। तो 9 तो मालूम है 3 के टेबल में आता है, तो वी कैन डिवाइड इट बाय 3। 3 3 9, 3 3 1 3। So all these are the factors of 576। इसमें कितने फैक्टर्स है देखिए, 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया,
और 2 बार 3 आया, तो हम उसको इस तरीके से लिख देंगे। नाउ उसको हम पेयर्स बनाएंगे। कितने, जैसे जोड़ी बनाते हैं, जूते की जोड़ी होती है ना, वैसा। तो दो दो की जोड़ी बनाएंगे। ये स्क्वायर रूट है, ऐसा अगर क्यूब रूट होता तो हम तीन तीन के पेयर्स बनाते थे। ये स्क्वायर रूट है तो हम इसके दो दो के पेयर्स बनाएंगे। कैसे? इस तरीके से, एक बन गया, फिर ये दो, फिर तीन, और ये तीन का एक पेयर बन गया, चार। तो अब स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए ये जो पेयर्स हैं उसको एक बार बाहर लिखेंगे और स्क्वायर रूट हट जाएगा। बच्चे समटाइम्स क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के बाद भी स्क्वायर रूट के अंदर आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट सॉल्व होने के बाद जब आप इसको एक बार लिखेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब बहुत सिंपल है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा 24। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 576। लेट्स कम बैक। सो हियर वी गॉट h आ गया। अब हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव r एंड आल्सो वी हैव calculated h. Okay, so let's find out. So we have radius r, we have slant height. Height of the cone हम निकाल लिए हैं 24 सेंटीमीटर. Now we'll substitute in the formula of volume of cone. Okay, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का गिवन वैल्यू लिख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 7 है, एज गिवन आप ऊपर देख सकते हैं, और एच की वैल्यू 24 है। 7 स्क्वायर का आप 7 × 7 लिख सकते हैं। अब इजीली हम कट कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 7 कट हो गया। और उसके बाद हम बचा जो वैल्यू है, अच्छा 3 से भी कटेगा, देखिए। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। नाउ गिवन जो बच गया वैल्यू क्या है, 22 × 7 × 8। जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। बट दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन कोन, बट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, मेन एम द क्वेश्चन वाज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था, करेक्ट। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन आया है 1232, वन कोन, ठीक है, याद रखिए। वॉल्यूम ऑफ वन कोन आया है। तो यहाँ देखिए, हमको पूछ रहा है क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम फर्स्ट जो हमारा पेज था उसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से निकालने के लिए हमको 5 × V करना पड़ेगा, मीन्स 5 × वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस बिफोर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन कोन आया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इजी। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हियर टू फाइंड आउट curved surface area of cylinder. Okay, now let's see curved surface area of cylinder. How to find out? Let's write the given things first. Okay, so we have सिलेंडर, कैपिटल आर ले रहा हूं मैं से, 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। if the radius of the circular base of the cylinder is 14 centimeter. Okay, so radius of the base दे रखा है 14, but we don't have height. Okay, height of cylinder नहीं मालूम, कैपिटल H। और फॉर्मूला जो होता है वो 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया का। R मालूम है, H नहीं मालूम। H कैसे निकालेंगे? We have to find out H. Okay, so how? H निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे भाई H को? To find out the height of cylinder, we can use the volume of cylinder. कैसे?
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने अभी निकाला है ना, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड। कितना आया था वो? पहले कितना आया था? वॉल्यूम सिलेंडर आया था हमारा 6160 सेंटीमीटर क्यूब, इजंट इट? 6160 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया था। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, आप बोल सकते हैं वॉल्यूम सिलेंडर इज 6160 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 6160 और विद द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और रेडियस दिया हुआ है 14, एच की वैल्यू अननोन है 6160। तो हम 14 स्क्वायर को 14 × 14 भी लिख सकते हैं। नाउ आप इसको कट करेंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। अब आपके पास आ गया है 22 × 14 × 2 × एच = 6160। अब ये जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, अब ये राइट हैंड में साइड में आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, और आप इसको कट कर सकते हैं। 2 11 = 22, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और ये हो जाएगा 2 3 = 6, या तो 230 सीधा ले लो, 230 = 60, 2 8 = 16, 2 0 = 0, या फिर आधा कर दो 6160 को, जैसे भी आप समझे। और फिर इसको 11 1 11 से काटेंगे, 11 2 = 22, 11 8 = 88, एंड 11 0 = 0। और भी कटेगा ये, 14 1 = 14, और 14 20 = 280, फिर 2 1 = 2, और 2 10 = 20। सो h = 10 सेंटीमीटर। हाइट आ गई है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, पर वॉल्यूम निकालना नहीं है, वो क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh। पुट द वैल्यू, हाइट हमने 10 निकाल ली है, तो हमने 10 पुट कर दिया, रेडियस ऑलरेडी मालूम है 14। तो अब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 7 1 = 7, और 7 2 = 14, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 22 = 44, 44 का डबल 88, और 88 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़े से स्टेप्स को ध्यान रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।